sir. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. Can you hear me? Yes, sir. Welcome. Only we are three here, Gautam Sharma ji and Monica. Welcome you both. No more. Just let me wait, beta. Just 2 minutes. I am waiting for them. Gautam Sharma and Monica. I have sent you the PDF of the same lesson. What you are going to study today, right? Yes, sir. Yeah. So just 2 minutes, children. Let them to come. How are you all? Fine, sir. Thank you. Monica, how is your health? Now you good feeling? Yes, sir. Sure, sure. Gautam Sharma ji, how are you? Gautam, Fine, sir. how are you, beta? Sir, fine. What you have taken? Commerce or arts? What you have taken? Sir, commerce. Commerce. Very good. Good. Whether the Pansu, they are not joining. Sir, I'm calling him. Yeah. Just call him. Because only two we are here, beta. This very important chapter where I am going to teach today. So just call them. I'm waiting 1 minute more. Yeah. Yes, Varun Lohia ji. Welcome to you. Can you hear me, Varun? Varun Lohia, can you hear me? Yes, sir. Thank you. Welcome. Where Tarun is? Only three were here. Let us start. Yeah, should Yes, we sir. wait? Okay, students, now I am going to start. Okay. Yes. Today we'll learn about third chapter. The name of the lesson is Ranga's marriage. This is the third chapter of supplementary snapshots. As you know, the name is Ranga's marriage. By chapter name, it's very clear that we are going to study about Ranga. Ranga is the name of a boy. We'll study about his marriage.
Ranga is from Mysore of Karnataka, a very small village. This boy is, and his father is an accountant. Once he is going to study for in a town, I mean Karnataka, Bangalore. After 10 years, he coming back in the village. When he coming in the village after 10 years, the people of the village are going to contact him because after a very long time, he had come in the village. And now when he had come, he has started to speak some English language, few English word. So everyone is very happy to see him, to listen him. So everyone wanted to know whether the Ranga who was 10 years ago is the same or have any changing in his behavior, in nature. So many of the people are going to meet him. But finally, they found there is no changing in the nature of Rangaj. यह एक लड़का का कहानी है। रंगा एक बॉय है जो कि उसके पापा जो है एक अकाउंटेंट है बेटा। वो अपने बच्चे को शहर में बेंगलोर में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहां पढ़ने के बाद, पढ़ाई करने के बाद 10 साल के बाद वो गांव में लौटता है। जब गांव में लौटता है 10 साल के बाद, तो उसमें कुछ चेंजिंग आते हैं। चेंजिंग किस चीज में आते हैं? उसके लैंग्वेज में। अब वो रंगा नहीं रहा जो 10 साल पहले हुआ करता था। अब वह जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता है। ये बातें उस गांव में चारों तरफ फैल जाती है कि रंगा जो है वो इंग्लिश बोलता है। टूटी फूटी जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो बोलना शुरू कर देता है रंगा। तो ये बातें गांव में चारों तरफ जो है वो फैल जाती है। ऐसा क्यों बेटा? जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल में, मतलब बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग बैक, गांव में बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे। उन्हीं में से ये रंगा भी था। क्योंकि मैसूर के एक छोटे से गांव से होके बिलोंग करता था, तो उस छोटे से गांव का एक बच्चा जो बेंगलोर जैसे शहर में जाकर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जब वो गांव लौटता है 10 साल के बाद, तो उसमें कुछ चेंजिंग आता है। तो लोग सुनते हैं, दूर दूर के लोग उससे मिलने आते हैं कि भाई रंगा आया है 10 साल के बाद गांव में, वो तो इंग्लिश बोलता है। तो बहुत सारे लोग उससे मिलने आते हैं। उसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि रंगा का कहीं स्वभाव जो है, अपना जो मेन जो है, मूल जो स्वभाव है, कहीं उसमें तो परिवर्तन नहीं आ गया, कहीं अपना कल्चर तो वो नहीं भूल गया शहर जाकर। इसलिए लोग जो है उसे मिलने के लिए आते हैं। उसी में लेखक जो इस कहानी का राइटर है वो भी मिलने के लिए जाता है। लेकिन पता चलता है कि नहीं, रंगा भले इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी के 2-4 शब्द सीखा है, लेकिन रंगा के स्वभाव में, नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हमारे गांव की कल्चर है, जो संस्कृति है, वो वैसा के वैसा ही है। तो पता ही है आपको कि गांव में जब कोई लड़के पढ़ लिख के आते हैं बाहर से, तो उसके शादी विवाह की बात होने लगती है। तो ये जो है रंगा अभी छोटा ही है, फिर भी चूंकि पढ़ लिख के गांव में आया है शहर से, तो लोग उसकी शादी बारे में बात करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं रंगा से कि आप शादी करोगे? तो जैसे गांव के लड़के कैसे हैं, वो शर्मा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो अभी भी वही स्वभाव है रंगा के पास। वो उतना जो है पूरे ओपन माइंड का नहीं हुआ है कि हाँ हाँ हम शादी के, ऐसा नहीं है। वो रंगा जस्ट गांव के बच्चों की तरह ही सेम बिहेव करता है। जब लोग पूछते हैं शादी के बारे में,
तो वो धीरे से मुस्कुरा देता है, वो कुछ बोलता नहीं है, आई मीन शर्मा जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक लड़की को देखता है, वह उसके साथ इंटरेक्ट हो जाता है। तो यह एक चाइल्ड मैरिज कह सकते हैं, उसके ऊपर भी एक कहानी है। क्योंकि जो लड़की है जिसके साथ इसका रिश्ता तय होने वाला है, वो लड़की जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है। तो उस समय बहुत साल पहले जो चाइल्ड मैरिज होता था, जिसे बाल विवाह कहते हैं, उसके ऊपर एक कहानी है। होपफुली you have understood it was the summary of the lesson. Kiranga was a boy of Mysore, of a small village. He is going for study in Bangalore. After 10 years, he coming back home and he started to speak few English words. So the people of the village are going to meet him. Many of the person are talking about him, whether the Ranga have changed his nature or he have forget his culture. But the people found that Ranga is the same what it was 10 years back. He have not forgotten his culture. He have some manners. Among them, the writer itself he was who met two Rangas. And finally, the people are asking to marry him. But the same like a village boy, he smiled and didn't answer. But when he saw one day a girl of 11 years old, he interacted with her like as a village boy. So it is the story of Ranga's marriage. Hopefully you got the title Ranga's marriage. Ranga ki Sadi. Now here I'm going to share the screen. So let us see. Yeah, can you see it? Can you see everyone? Yes, sir. Okay. Yes, Fine. sir. Yes, sir. Okay, good. Can you hear me, everyone? Na? Audible? Sound is audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. Now let's see. Ranga's marriage. This story has been written by Masti Venkatesa Iyer. This story has been written by Masti Venkatesa Iyer. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. As I told you, Ranga, the accountant's son. As I mentioned here, he was the son of an accountant. Means his father was an accountant. One of the rare breed among the village. Means ki of his own caste. Breed is here, caste, religion. Here, a very few people were raised in the village of his own caste. Folk who had been to the city to pursue his study. Pursue means follow. Here, PRSSUE. Pursue. Pursue means होते हैं बेटा follow. And FOL के folk means होते हैं people. Has written there folk. Folk means people. People who has been to the city to pursue his studies. Right? So let's see here. Who had been to the city to pursue his study. मतलब बहुत ऐसे कम लोग होते थे गांव के जो शिक्षा के लिए दूसरे शहर में जाते हो. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowds milled around his house to see whether he had changed or not. As I mentioned here, when he returned
The crowd mill, M-I-L-L, mill means to gather. Try to learn here the meaning also. M-I-L-L, mill means to gather. इकट्ठा होना. Means when he returned to the village, the people gathered around him. To his house to see whether he had changed or not. लोग ये देखने के लिए आए कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं. His idea about marriage are now quite different. Or are they? क्या जो शादी ब्याह की आइडिया है उसका कोई डिफरेंट है या सेम है, जैसे विलेज के जो लड़के होते हैं वही आइडिया उसके पास है, या कुछ उसकी आइडिया बदल गई है शहर में जाने से. जैसे व्हाई द राइटर इज सेइंग हियर बेटा, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट दो हु आर गोइंग टू द सिटी फॉर हायर स्टडी या फॉर स्टडी, व्हेन दे बैक इन द विलेज, their attitude, their language, everything become changed. Now they didn't listen to his parents. They wanted to move their own way. मतलब जो आजकल कैसा माहौल है कि जो लड़के शहर में जाते हैं कुछ दिन तक वहां रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो फिर वो वापस गांव आते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें यदि शादी ब्याह करना चाहते हैं तो उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो काफी हाई हो जाता है, वो बदल जाते हैं उनके विचार. अब वो पेरेंट्स की बातों को नहीं मानते हैं या अपने स्वेच्छा से वो शादी ब्याह करना चाहते हैं. मीन्स ये है कि पेरेंट्स के साथ वो नहीं रहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं है, बहुत बच्चे मानते भी हैं, बट बहुत बच्चे नहीं मानते हैं. इसलिए राइटर ने ऐसा लिखा है कि हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. और आर दे, या वो जो आइडिया है शादी विवाह के बारे में उसका डिफरेंट है या वही है जो गांव के बच्चों को होता है. नाउ लेट्स सी हियर द स्टोरी इन डिटेल. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage. Why not Ranganath Vivah or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana. The writer himself saying that I have put the title here Ranga's marriage. But the people will ask why you have put the title Ranga's marriage. Why you have not put the title Ranganath Vivaha or Ranganatha Vijaya? लोग मुझसे पूछ, राइटर इज सेइंग हिमसेल्फ टू द रीडर. रीडर मतलब वी आर रीडर, जो पढ़ने वाले हैं उनसे कह रहे हैं कि लोग मुझे यह बोलेंगे कि आपने टाइटल ऐसा क्यों रखा रंगा मैरिज, आपने इस टाइटल का नाम रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा या रंगनाथा विजया क्यों नहीं रखा. वेल यस आई नो, मुझे पता है कि आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा. मैं रख सकता था, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं रख सकता था, मैं दूसरा नाम भी रख सकता था. मुझे आइडिया आया था कि मैं जगन्नाथ विजय रख दूं या गिरिजा कल्याणा रख दूं, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. But do you know why I have not put the name like this? Because it was not a big ceremony या big family या big cities marriage. That's why I have put the very simple topic Ranga's marriage. Here the writer wanted to say that कि यह जो बात हम करने जा रहे हैं यह कोई बहुत बड़ा, कोई पॉपुलर, कोई फेमस, उस प्रकार के कोई पर्सन के बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं, या ये कहानी वैसे बहुत बड़े वीआईपी खानदान या वीआईपी फैमिली की नहीं है. इसलिए मैंने टाइटल जो है
बहुत ही सिंपल रखा है, रंगाज मैरिज। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। यह जो है हमारे अपने रंगा के बारे में है। ये हमारे अपने जो रंगा है, जो मेरे गांव का जो रंगा है, ये छोटे से गांव का जो रंगा है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़ी फैंसी शादियां नहीं है। मैंने कोई पॉपुलर, कोई रोल मॉडल, कोई फेमस वैसे पर्सन की शादी नहीं है, इसलिए मैंने इसका बहुत सिंपल नाम रख दिया, रंगाज मैरिज। फैंसी टाइटल, हौश हॉली। Hosha Holi is our village. Now remember here children, what the village he is going to mention here, या रंगाज village, that name is होशा हली। उस गांव का नाम जो है होशा हली है, जहां का रंगा रहने वाला है। होशा हली इज आवर विलेज। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, आपने जरूर नाम सुना होगा। क्या आपने नहीं सुना है गांव का नाम? व्हाट इज ए पिटी, मैं क्या कर सकता हूँ। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, फिर भी यह आपका फॉल्ट नहीं है। यदि आपने गांव का नाम नहीं सुना है तो आपका फॉल्ट नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। वो फिर कहने जा रहे हैं कि आप सब जो पाठकगण हैं, पढ़ने वाले, ये आपकी गलती नहीं है। चूंकि ज्योग्राफी में ही इस गांव का कहीं वर्णन नहीं है, इसलिए आप शायद हो सकता है ये गांव का नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए आपकी गलती नहीं है। Those sahibs in England writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it। कहा कि जो इंग्लैंड में रहने वाले जो इंग्लिश राइटर हैं, शायद वो भी इस गांव का नाम नहीं सुने हैं, इसलिए उन्होंने आज तक अपने राइटिंग में कहीं भी इस गांव का नाम मेंशन नहीं किया है। Means here writer wanted to say that कि the village what I am sharing here is not a so popular village. If it would be the popular village, obviously the English writer of England would mention the village name. But this village is not so popular, not popular. That's why it not has been mentioned anywhere. Even in the geography lesson, there is no name of this village. So it is not popular. So I hope you don't know the name of this village. The writer wanted to say here. वो कह रहे हैं हम सबों से कि शायद आपको इसलिए ये गांव का नाम पता नहीं है, और आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात भी नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े राइटर है उन्हें भी पता नहीं है, इसलिए अपने कहानियों में इस गांव का नाम मेंशन कहीं नहीं किया है। Our own people to forget about it. Our own people to forget about it means here our own people means Indian. He wanted to indicate here our own people means Indian. Even Indian to forget about it. यहाँ तक कि जो इंडियन है उन्हें भी पता नहीं है इस गांव का। भला वो इंग्लैंड के लोग क्या जानेंगे इस गांव के बारे में। You know how it is? They are like a flock of sheep. क्या आपको पता है ये गांव के लोग कैसे हैं? They are like a flock of sheep. जैसे आपने भेड़ देखा होगा, भेड़ क्या करते हैं? झुंड में चलते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप मीन्स ग्रुप ऑफ शीप। जो भेड़ होते हैं वो क्या है? एक ग्रुप में चलते हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पीट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। यदि एक भेड़ गलती से भी किसी खाई में कूद गया, बाकी भेड़ जो उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। तो ये वैसे ही गांव की कहानी है। तो ये गांव जो है जिसे हम मेंशन करने जा रहे हैं कोई पॉपुलर नहीं है, इसलिए यदि आपने नाम नहीं सुना होगा तो आपकी गलती नहीं है। क्योंकि ये गांव के जो लोग हैं वो फोल्क ऑफ सीप है, वो कह के बुलाते हैं कि गांव के लोग ऐसे हैं यहाँ के। When both the sahibs in England and our own geographer have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer
to remember to put it on the map. यदि इंग्लैंड के राइटर या ज्योग्राफी लेसन के जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो यदि ये गांव को मेंशन कहीं नहीं किया, तो जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर मतलब होते हैं राइटर के डिमांड पर जो पिक्चर भेजते हैं उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। भला वो कहाँ से इस गांव को मेंशन करेगा? वो कहने जा रहे हैं कि जो कार्टोग्राफर होते हैं, कार्टोग्राफर वो होते हैं जो राइटर के डिमांड के हिसाब से पिक्चर को जो है सेट करते हैं, कहानी के अकॉर्डिंग पिक्चर को सेट करते हैं। तो भला वो इंग्लैंड के राइटर, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, वो उन्हें पता नहीं है कि भला कार्टोग्राफर जो है वो कहाँ से देगा। हैव नॉट रेफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर, सो देयर इज नॉट इवन, so you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? क्या आप सोच सकते हैं? And so there is not even the shadow of our village on any map. यही कारण है कि किसी भी मैप पर पिक्चर तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि शैडो भी आप देख नहीं पाएंगे हमारे इस गांव को। जिस गांव का मैं मेंशन करने जा रहा हूँ उस गांव का आप दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं देखेंगे और ना उसका एक शैडो ना तो पिक्चर दिखाई पड़ेगा। गांव का नाम क्या है? होसाहली। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी, मैंने आप सबों से क्या बात कर दिया, मैं किस दिशा में कहानी को लेकर चला गया। ये सब राइटर बोल रहे हैं बेटा, राइटर कह रहे हैं कि सॉरी, I started somewhere and then went off in another direction. मैं शुरुआत क्या किया था और मैं कहाँ चल दिया। If the state of Mysore is to भारतवर्षा, मतलब भारतवर्ष को कहते हैं भारतवर्षा, what the sweet कारीगडाबू, कारिंगा डब्बू इज टू अ फेस्टिवल मील। कह रहे हैं कि जो भारत वर्ष के लोग हैं, अब ये अपने इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि भारतवर्षम मतलब इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं, यदि उन्हें पता नहीं है इस गांव के बारे में, तो शायद वो जो है कारिंगा डाबू के बारे में भी नहीं जानते हैं। Here do know children what is the कारिंगा डाबू? कारिंगा डाबू इज अ साउथ इंडियन स्वीट। ये जो है साउथ इंडियन स्वीट है जिसे हम यहाँ लोकल भाषा में गुजिया कहते हैं बेटा। इसे हम क्या कहते हैं? गुजिया। और इस गुजिया में वहाँ के जो लोग हैं, जिस गांव के बारे में बात हो रही है, उसमें नारियल जो है वो उसे पीस करके और नारियल को उसी गुजिया में वो डाल देते हैं। और ये जो कारिंगा डाबा जो बोल रहे हैं हम लोग, कारिंगा डाबू, ये उस गांव का सबसे फेमस स्वीट है। तो वो कह रहे हैं राइटर कि यदि भारतवर्ष के लोग इस काशीवली गांव का नाम नहीं जानते हैं तो शायद वो कारिंगा डाबू को भी नहीं जानते होंगे। वो फेस्टिव मील है। फेस्टिव मीन्स की एवरी स्पेशल ओकेजन देयर ओवर काशीवली द पीपल prepare these sweets. Then Hoshawali is to Mysore. State what the feeling is to the कारीगर डाबू। तो जो लोग उसे नहीं जानते हैं इस स्वीट को भी नहीं जानते होंगे, और जो इस स्वीट को जानते होंगे वो होशावली को जरूर जानेंगे, क्योंकि होशावली फेमस फॉर दिस स्पेशल स्वीट्स। What I have said is absolutely ट्रू, बिलीव मी। अब तक मैंने जो कहा आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने बिल्कुल बिल्कुल ही सही कहा है कि जो लोग इस गांव का नाम नहीं जानते हैं वो इस मिठाई जो मैंने स्वीट्स के बारे में बात किया वो स्वीट को भी नहीं जानते होंगे। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप क्यों नहीं जानते हैं, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन मीन्स आई एम ना इन माई ओन ओपिनियन, आई बिलीव है। आपको पता नहीं होगा, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने तो देखा है, नजदीक से
मैं उस गांव को जानता हूं ना, आप भले विश्वास करें या न करें। ये राइटर बोलते हैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशा वैली। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। He agreed with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Anaya. Now, in support, here the writer wanted to say he taking one name of doctor. Na, if you wanted to know this village, you may ask the person who is a doctor and have been in the village. एक डॉक्टर है यहाँ, उन्होंने कहा उसका नाम है गुंडा भट्टा। वो जो गुंडा भट्टा है, आप उनसे आप पूछ सकते हैं। वो जो है उनका भी यही अनुमान है, मेरे जैसा ही अनुमान है। मतलब ये ही एग्री विद मी, मतलब होता है कि जो मेरा अनुमान है यही अनुमान उनका भी है। कि वो भी कहते हैं कि इस गांव का नाम जो है शायद ही कोई जानता होगा, बट मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इस गांव का नाम, लेकिन शायद जो है दूसरे लोग नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से लेखक जो है वो भी सेम बात बोलते हैं कि जो गांव के नाम जो है मैं तो बहुत जानता हूँ, ये गांव तो फेमस है स्वीट्स के लिए, शायद वो कोई दूसरा कोई नहीं जानता है। और ये भी बोलते हैं राइटर कि जो डॉक्टर साहब हैं वो इंग्लैंड नहीं गए हैं, वो इंग्लैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आपसे, उसी गांव की बात कर रहे हैं। If anyone asks him whether he has been there, यदि कोई उनसे पूछता है कि क्या आप वहां गए, he says no, अनया। अनया मतलब एल्डर ब्रदर को कहते हैं साउथ इंडियन में, ठीक है। अनया जो है ना, अनन्या जो कहते हैं बड़ा भाई को। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, चलो ये मैं तुम्हारे के लिए छोड़ देता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact, he has seen many. I have left that to you. चलो मैं अब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। मतलब ये रीडर को बोलते हैं, जो रीडर है पढ़ने वाले, मीन्स हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि चलो अब तुम लोगों पर छोड़ देता हूँ। मैंने अब तक तो इतना परिचय दिया इस गाँव का, अब तुम समझो। हाँ, राइटर का कहना है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली वेस्टेड डॉग, जो डॉग होते हैं जो गलियों में घूमते रहते हैं, तो जो कुत्ते होते हैं आपको तो पता ही है, स्ट्रीट डॉग, वो केवल अपने ही है ना गलियों के बारे में उन्हें जानकारी होती है, या अपने ही गलियों के लोगों से वो परिचित होते हैं। और दूसरे अनजान जो लोग आते हैं क्या करते हैं, वो भौंकने लगते हैं, या दूसरे उस गलियों में कोई कुत्ता आता है दूसरे जगह के तो वो भौंकने लगते हैं। लेकिन वही कुत्ता जब कहीं बाहर जाता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो कहीं कुछ दुनिया देखा ही नहीं है, वो अपने ही गांव में है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि इस गांव के बारे में बातचीत हो रही है, यह कोई पॉपुलैरिटी जो है गेन नहीं किया है गांव, इसलिए मैंने जो चैप्टर का नाम रखा है और बहुत सिंपल नाम मैंने रखा है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मेनी। हालांकि उसने बहुत दुनिया देखा है, लेकिन इस गांव के बारे में कहीं वर्णन नहीं है, तो शायद वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। We have some mango tree in our village. Now he is going to introduce his village, how his village is. We have some mango tree in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. वो बोलते हैं हम सबको, रीडर को, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके बारे में बोलते हैं कि आप आओ मेरे गांव में, घूमो, देखो, हमारी गांव में आम के पेड़ हैं बहुत सारे। यदि आप आओगे, कम विजिटर्स एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, जो कच्चा आम होता है रॉ, हाँ, नॉट राइपन, रॉ, जो कच्चा आम होता है मैं आपको दूंगा फ्रॉम वन ऑफ देम। मीन्स यहाँ जो कच्चा आम है वो काफी फेमस है, मैंगो ऑर्चर्ड है, बहुत सारे पेड़ हैं हमारे गांव में। देयर आर सो मेनी मैंगो ट्री वेयर द ऑल ट्री आर laden with the raw mangoes. When you will visit here, I will give you a mango.
don't eat it. Then what he telling that don't eat it, just take a bite. इसे खाओ मत, just bite. Bite means क्या, दांत से केवल उसे एक बार काटो तुम. Just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahman Randhra. Do you know children what is saying there? Sourness. Sour तो समझते ही है ना, sour जिसे हम खट्टा बोलते हैं. जिसे कच्चा आम जब हम अपने बाइट करते हैं, इसे काटते हैं दांतों से, तो कितना खट्टा लगता है, राइट? तो वो कह रहे हैं कि आप आओ मेरे गांव में, मैं आपको आम खिलाऊंगा, कच्चा आम. उस आम को तुम खाओ मत, केवल बाइट करो, और देखो जैसे ही तुम बाइट करोगे तुम्हारे पूरे बॉडी में एक झंझनाहट जो है वो होगी. कैसा? खट्टापन का एहसास होगा. शावरनेस जो है वो फील होने लगेगा पूरे तुम्हारे बॉडी में. आई एम नॉट द ओनली मैंगो ट्री. डोंट ईट इट. आप खाओ नहीं. Just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahma Randhra. I once took one such a fruit home and a chutney was made out of it. एक बार मैं ऐसे ही आम को अपने घर ले गया और मैंने उसके साथ में क्या बनाया?